Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mr. Sanaullah Khan, lecturer in computer science, Institute of Computing, Kuwait, University of Science and Technology, Kuwait. And today lecture I want to discuss some basic semester rules and regulation. This topic is divided into two parts, part 1 and part 2. In part 1 we will discuss the basic idea, basic rules and regulations, while in part 2 we will discuss the committees which are constituted for the semester rules, for the implementation of semester rules and regulations. So let's start. This is the agenda item. In this lecture we will discuss, we will define some basic terminologies, semester durations, admission policy, courses of study, course file, evaluation procedure, and then departmental semester committee, which will be discussed in the part 2. These are the agenda items. So definitions, first of all, कॉलेज क्या होता है, कहाँ कहाँ पे ये बीएस के रूल्स या रेगुलेशन अप्लाई होते हैं. कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस में. सो कॉलेज, बाय कॉलेज मीन्स एनी गवर्नमेंट कॉलेज वेयर बीएस 4-year program are offered. Head means chairperson if it is in a university or department, or principal of a college, or director of institution or faculty, academy, center, etc. Institutions mean constituents or affiliated department, like college affiliated with the or some department or center affiliated with the some specific university. Colleges, institute, center, academy, etc. Dean, it is normally this available in the university, not in colleges. Dean of faculty, a dean, under the dean there are some faculty. Colleges matters are also discussed with dean. Departmental coordinator or semester system means a faculty member of the department, college, institute, center, academy. उसकी responsibility क्या होगी? Who has been assigned the duty of coordinating semester system in a department by the head of respective department principals. Means के coordinator का काम होगा कि semester system को monitor करना, coordinates करना, लेकिन ये अकेले नहीं होगा, with the help of department head or with the help of principals. Departmental semester committee means a committee constituted under these regulations. क्या regulation है? Teacher accessibility, it is also important in the semester system कि उसमें teacher accessible होना चाहिए. Accessible means available होना चाहिए. Teacher shall be accessible to students outside the class, particularly during office hours in the college, for timely and constructive feedback and supports. It means that a teacher को चाहिए कि ऑफिस के बाहर एक लिस्ट अवेज़ा कर ले जहाँ पर उसके क्लास टाइम, ऑफिस आवर्स, ब्रेक टाइम, ये सारा डिटेल अवेलेबल होना चाहिए. जब भी स्टूडेंट्स चाहे ऑफिस आवर्स में उसके साथ कम्युनिकेट करवा सके अबाउट द कोर्स, अबाउट द प्रॉब्लम relevant to semester, or about the problem relevant to the some other rules or matters relevant to the semester. एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है सेमेस्टर सिस्टम में वो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं. इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज मीन लाइब्रेरी, मतलब कि लाइब्रेरी जो है वो जो कॉलेज का टाइम है, मींस लेट सपोज अगर कॉलेज का टाइम है 8 AM to 4 PM,
तो लाइब्रेरीज़ 8 AM टू 4 PM ओपन होना चाहिए, जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ के बुक्स जो रिलेवेंट टू कोर्स हैं वो भी अवेलेबल होना चाहिए, और साथ साथ इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी। इसके अलावा इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज में लैब्स आते हैं, जिसमें रिलेवेंट टू सब्जेक्ट लैब्स भी हैं और कंप्यूटर लैब्स भी। रिलेवेंट टू सब्जेक्ट लैब्स मीन इफ़ यू हैव अ BS प्रोग्राम इन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की रिलेवेंट जितनी भी लैब्स हैं जो कि BS में रिक्वायर्ड प्रैक्टिकल है, तो वो लैब्स अवेलेबल होना चाहिए। और साथ साथ एक जनरल कंप्यूटर लैब, जहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिक कंप्यूटर या इसके अलावा नेट यूज़ करवाना चाहें, या इसके अलावा अपने असाइनमेंट्स वगैरह पे काम करना चाहें। इंटरनल मॉनिटरिंग कमेटी, ये मॉनिटरिंग कमेटी जो हैं मेंबर्स, वो मेंबर्स इसमें होंगे फैकल्टी मेंबर जो सीनियर हैं, मींस AP एसोसिएट, AP या सीनियर लेक्चरर मेंबर्स। इसका काम क्या होगा? एवलुएट्स करना होगा, मॉनिटरिंग करना होगा, सपोर्ट प्रोवाइड करना है, और ये सारे एकेडमिक एक्टिविटीज़ रिटन फॉर्म में भी लेकर आए, और इसको जहाँ पे प्रॉब्लम है तो डिस्कस करते रहें। अच्छा, सेमेस्टर ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? HEC के क्लियर कट गाइडलाइंस है इसमें कि एकेडमिक ईयर क्या होता है? एकेडमिक ईयर ये होता है कि साल स्टार्ट होता है सेशन, और सेशन एंडिंग तक जितनी भी ड्यूरेशन है स्टडी का, इसको एकेडमिक ईयर कहते हैं, या नॉर्मली हम इसको सेशन भी कहते हैं। और हर एक सेशन में 2 रेगुलर सेमेस्टर होते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉल एंड स्प्रिंग सेमेस्टर। लेकिन इसके अलावा सम टाइम्स अगर ज़रूरत पड़े तो ऑप्शनल सेमेस्टर होते हैं, जिसको दोज एरिया जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होते हैं तो इसमें समर सेमेस्टर ऑफ़र होता है, और जहाँ पे सर्दी ज़्यादा है तो वहाँ पे विंटर सेमेस्टर ऑफ़र होता है, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। नॉर्मली इसका टोटल टाइम 8 वीक्स होता है, लेकिन 8 वीक्स में डबल क्लासेस लेना होगा, जो कि 16 वीक्स के जो कोर्स कंटेंट्स है उसको कवर करवा सकें। फॉल सेमेस्टर कब से स्टार्ट होता है? नॉर्मली सितंबर से, और जनवरी एंड में या फरवरी स्टार्ट में ख़त्म होता है। और स्प्रिंग सेमेस्टर नॉर्मली स्टार्ट होता है फरवरी से और एंड होता है जून में। ये वेरी भी करते हैं ड्यू टू टाइम, या कुछ हालात ऐसा आ जाए तो ये लिटिल बिट इसमें चेंजेस पॉसिबल हैं। अच्छा, हर एक सेमेस्टर में जो हैं वो 8 वीक पर मुश्तमिल होगा, 18 वीक्स पर टोटल ड्यूरेशन है। उनमें से 16 वीक जो हैं वो टीचिंग के लिए हैं, और 2 वीक जो हैं वो एग्ज़ामिनेशंस के लिए, जिसमें मेरिट फाइनल आ गए, जिसमें मेड सेमेस्टर, क्विज़ेस, असाइनमेंट, ऑल दीज आर इंक्लूडेड। हाँ, अगर कुछ इस तरह सिचुएशन आ गए जहाँ पे हालात हैं कि कॉलेज बंद हो जाए, तो उसी ड्यूरेशन में सेमेस्टर का ड्यूरेशन जो है वो अप्स एंड डाउन करवा सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। लाइक आजकल जो कोविड पेंडेमिक हैं, तो इस वजह से सेमेस्टर में मंथ्स और हाफ मंथ्स जो हैं वो अप्स एंड डाउन होता रहता है। अच्छा, इसी दौरान एक ब्रेक भी होगा 1 वीक का, जिसको नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में स्पोर्ट्स गाला या वीक सेमेस्टर ब्रेक के नाम से इस तरह के डिज़ाइन किया जाता है। वहाँ पे ब्रेक होगा, और ये नॉर्मली मिड और फाइनल के दरमियान ही होता है। इसको या 2 सेमेस्टर के दरमियान, एक सेमेस्टर ख़त्म हो गया फिर सेमेस्टर ब्रेक, देन सेकंड सेमेस्टर। क्रेडिट आवर्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेमेस्टर सिस्टम में, मीन्स टीचिंग अ थ्योरी क्लास फॉर 1 आवर। मीन क्रेडिट आवर का ही मतलब है कि एक सब्जेक्ट का 1 घंटा क्लास, या लैब क्लास, या प्रैक्टिकल क्लास। तो इसका मतलब है कि फील्ड वर्क ऑफ 1 डे एवरी वीक थ्रू आउट द सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट का अगर 3 क्रेडिट आवर हैं, तो इसका मतलब है कि पर वीक 3 थ्योरी क्लासेस होगी। So the number of credit hour for a degree program is inclusive of credit hour assigned to the internship, research project वगैरह। इसके लिए जो क्रेडिट आवर असाइन हैं वो डिग्री प्रोग्राम्स के लिए वो भी इंक्लूडेड होते हैं। थीसिस जो हैं वो क्रेडिट आवर में आते हैं, या फाइनल जो प्रोजेक्ट हैं स्टूडेंट्स का वो भी क्रेडिट आवर्स में इंक्लूडेड है।
Credit hours are denoted by 3 digits like this: M parenthesis N dash P, where M means total credit hours. Let's suppose 3 means total 3 credit hour. Where N is the credit hour for theory, means अगर ये भी 3 है तो credit hour पर theory, और P credit hour पर practical or lab. For example, वीकली कंटेक्ट आवर्स किसी भी एक सब्जेक्ट का अगर 3 है, इसी फॉर्म में 3 × 3 0, तो 3 मीन्स 3 theoretical credit hour classes per week, एंड 0 मीन के 0 प्रैक्टिकल आवर, यानी ये theoretical कोर्स है, इसके लिए कोई भी लैब या प्रैक्टिकल नहीं है. अब अगर लैब वाला क्लास है तो 4 क्रेडिट आवर कंसीडर होता है. लाइक दिस, टोटल 4 क्रेडिट आवर, इसमें से 3 जो है theoretical क्लास के लिए है और 1 जो है वो प्रैक्टिकल. बट अगेन 1 इज़ ऑलरेडी इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है कि जो 1 प्रैक्टिकल क्लास हैं ये भी 3 कंसीडर होगा. मीन्स कि 3 क्रेडिट आवर थ्योरी के लिए और सेम 3 क्रेडिट आवर उसके लैब्स के लिए. अगर आप पर वीक 2 लैब लेते हैं तो 1.5 आवर्स 1 लैब एंड 1.5 सेकंड लैब. अगर आप इसी हिसाब से लेते हैं कि पर वीक 3 लैब्स करते हैं तो 3 क्रेडिट आवर पर वीक, 1 आवर पर डे. अच्छा, कुछ कोर्सेज होते हैं जिसको हम क्रेडिट कोर्स कहते हैं और कुछ को हम कहते हैं कि नॉन क्रेडिट कोर्स हैं. क्रेडिट कोर्स वो कोर्स होते हैं जो कि जीपीए या सीजीपीए के कैलकुलेशन में इंक्लूड होते हैं. फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग क्रेडिट कोर्स हैं. इसके अलावा रिसर्च मेथड्स, ये नॉन क्रेडिट कोर्स हैं जिसमें स्टूडेंट जस्ट पास एंड फेल होते हैं. या एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं, इसी तरह के कोर्सेज जो होते हैं. या करियर डेवलपमेंट के लिए या एथिक्स के लिए कुछ क्लासेस या कोर्स रखा जाए तो ये नॉन क्रेडिट कोर्स हैं. while a course that shall be mandatory to pass but shall not be counted in a calculating GPA और CGPA. कुछ इस तरह के कोर्स जो कि मैंडेटरी हैं कि पास कर ले, लेकिन GPA या CGPA में कैलकुलेशन में उसकी कोई रोल नहीं होगा, यानी उसकी खास स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं होंगे, जस्ट पास एंड फेल में कंसीडर होगी. अच्छा, a semester will be considered as valid if 80% लेक्चर आर डिलीवर. कोई भी सेमेस्टर जिसमें आप 80% लेक्चर्स डिलीवर कर ले तो यूँ कंसीडर कर लो कि आपका सेमेस्टर कोर्स कंप्लीट हो गया. सेमेस्टर ड्यूरेशन इसी टेबल से भी क्लियर है. स्टूडेंट शैल बी अलाउड टू टेक मैक्सिमम 20 क्रेडिट आवर्स पर सेमेस्टर. एक स्टूडेंट्स के लिए एक सेमेस्टर में 20 क्रेडिट आवर्स अलाउड है. अब ये भी पॉसिबल हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट ने 5 कोर्सेज उठा लिए जो 3 क्रेडिट आवर के, तो 15 क्रेडिट आवर्स हो गए और 5 क्रेडिट आवर्स अभी भी रहते हैं. तो 5 में से अगर 2 कोर्सेज हैं जो कि एक 4 क्रेडिट का है और एक 3 का, तो वो इनमें से जस्ट एक उठा सकते हैं, क्योंकि अगर दूसरा उठा लेते हैं तो अबाउ 20 बन जाते हैं. या अगर दोनों 3 का हैं तो 6 बन जाते हैं, यानी 21 क्रेडिट आवर. तो दोनों भी ड्रॉप होगा क्योंकि वो एक ऐसा कोर्स रहे जो कि बिलो 20 क्रेडिट आवर्स आ जाए. सो सेमेस्टर में टोटल स्टूडेंट्स के लिए डिग्री कंप्लीशन के लिए 130 क्रेडिट आवर्स ज़रूरी हैं. अगर इससे अबव क्रेडिट आवर हैं, लेट्स सपोज 20 प्रोग्राम में टोटल क्रेडिट आवर 124 to 136 तक होते हैं, यानी ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है. टोटल सेमेस्टर ड्यूरेशन नॉर्मली 16 to 18 वीक्स होता है और कोर्स ड्यूरेशन 8 सेमेस्टर होते हैं जो कि 4 ईयर में कंप्लीट होते हैं. समर और विंटर ये फेल्योर स्टूडेंट्स के लिए, रिपीटिशन कोर्स के लिए सम टाइम्स अगर ज़रूरत पड़े तो इसको भी ऑफ़र किया जाता है. कोर्स लोड पर सेमेस्टर में, यानी एक सेमेस्टर में 15 to 18 क्रेडिट आवर्स अलाउड है, यानी एक सेमेस्टर में इससे ज़्यादा कोर्सेज नहीं रखना चाहिए. क्यों? इसलिए कि अगर कोई स्टूडेंट रिपीट्स करवाना चाहे तो इसके लिए स्पेस अवेलेबल हो. So the college may offer 1 or 2 summer winter session of 8 weeks with double contact hour. अगर समर ऑफ़र करते हैं तो वो 8 वीक्स का होगा, लेकिन इसमें क्लासेज जो हैं वो डबल होगी.
मसलन एक सब्जेक्ट था जिसके 3 क्रेडिट आवर्स का है, वो पर वीक उसकी 3 क्लासेस आते थे, लेकिन अब अगर समर में है तो पर वीक उसके 6 क्लासेस ऑफर होगी। Admission will be given as per the Higher Education Department admission policy. Course of study, इसको हम स्कीम ऑफ स्टडीज़ भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ स्टडी भी कहते हैं, करिकुलम भी कहते हैं। और ये कौन डिज़ाइन करते हैं? डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन, जो कि यूनिवर्सिटीज़ नॉर्मली उसी के जो रूल्स हैं उसी को फॉलो किया जाना चाहिए। हाँ, एक कंडीशंस है कि अगर आपके पास एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपने बीएस लॉन्च किया हुआ है जो कि कंसर्न यूनिवर्सिटी के साथ नहीं है, तो फिर उसका करिकुलम किस तरह फॉलो किया जाए, तो उसके लिए ऑप्शन है कि आप एचईसी के जो करिकुलम है रिलेवेंट टू दिस कोर्स दिस डिपार्टमेंट उसी को फॉलो किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास बीएस साइकोलॉजी है और यही साइकोलॉजी बीएस जो है यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है, तो फिर इसकी करिकुलम कहाँ से लिया जाए? इसकी करिकुलम या तो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स कर ले या एचईसी की जो करिकुलम है बीएस साइकोलॉजी के लिए उसी को फॉलो किया जाए। एक और कंडीशन जो कि बीएस 4 ईयर के लिए है, उसमें है कि जो क्लास फैकल्टी इंस्ट्रक्टर क्लास जो कोर्स टीच करवाना चाहे, जो मीडियम होगा उसके लिए वो इंग्लिश होगा, और स्टूडेंट से जो एग्ज़ाम लेना है उसका भी मीडियम इंग्लिश, यानी इंस्ट्रक्शंस के लिए भी जो कोर्स हैं, लेक्चर्स के लिए भी मीडियम इंग्लिश हैं, और साथ साथ एग्ज़ाम के लिए भी इंग्लिश में एग्ज़ाम भी लेना चाहिए। सो चॉइस हैं एक उर्दू का। उसी सूरत में अगर आपके पास इस्लामिक स्टडीज़ के कोर्सेज हैं, पाक स्टडीज़ हैं, या 20 आपके पास उर्दू में हैं, उसके अपने जो मेजर सब्जेक्ट हैं, तो वहाँ पर उर्दू की चॉइस भी अवेलेबल है। इसके अलावा वर्क प्लान पहले से, सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले वर्क प्लान आपका चाहिए, टाइम फ्रेम जिसको हम टाइम टेबल भी कहते हैं, डेली लेक्चर टॉपिक्स कंटेंट जिसको हम कहते हैं, और अप्रूव्ड सिलेबस जो कि यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड हो। ऐसा नहीं कि आप अभी 2021 जारी हैं और आपके पास बोर्ड ऑफ स्टडी हैं 2000 का, तो ये अलाउड नहीं होगा, वो तो बहुत ओल्ड होगा। लिहाजा अपडेटेड बोर्ड ऑफ स्टडी या स्कीम जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, और ये सेमेस्टर के स्टार्ट में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड भी होना चाहिए। इसके अलावा जो मेंटेनिंग है, मेंटेनेंसी है किस चीज़ की? कोर्स फाइल की, जो कि टीचर के लिए कंपलसरी हैं। इसमें क्या क्या चीज़ होगी? रिकॉर्ड होगी पूरे सेमेस्टर के दौरान जो एक्टिविटीज़ हो चुके हैं उसकी रिकॉर्ड कोर्स फाइल में अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये सेमेस्टर वाइज प्लान एक एग्ज़ाम्पल मैं शो करवा रहा हूँ। इसमें से लेट सपोज ये फर्स्ट सेमेस्टर हैं, तो टोटल क्रेडिट आवर 17 है। अब इसमें से ये जो हैं इसको CS101 इसको हम क्या कहते हैं? कोर्स कोड, और ये उसी कोर्स कोड का टाइटल है जिसको हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग कहते हैं। 3+1 या 3×3-1, इसका मतलब कि 3 जो हैं ये थ्योरेटिकल थ्योरी कोर्स हैं, थ्योरी क्रेडिट आवर्स हैं पर वीक, और 1 जो है वो प्रैक्टिकल है, और यही 1 जो है फर्दर इक्वल है 3 के। मतलब ये हो गया कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग पर वीक में 3 क्लासेस उसकी थ्योरी के होंगे और 3 क्लासेस उसकी लैब की। हाँ, सम टाइम कोई कोर्स प्री रैक होता है दूसरे कोर्स के लिए, लाइक दिस CS102, ये कोर्स कोड है और कोर्स का नाम है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, और इसका क्रेडिट आवर है 3+1, मीन्स 3 जो है उसकी थ्योरी और 1 उसके प्रैक्टिकल, अगेन 1 = 3। अच्छा, ये प्री रैक शो कर रहा है, इसके लिए कोई भी प्री रैक नहीं है, इसलिए तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी है। हाँ, अब ये है कि यही कोर्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल प्री रैक हैं किसी दूसरे कोर्स के लिए, जो कि लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसके लिए प्री रैक किया है CS102 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। इसका मतलब यह है प्री रैक का, जो कि ज़रूरी होता है किसी दूसरे कोर्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है जो कि BS में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब इसी स्टूडेंट्स ने FEC नहीं किया हुआ है, डायरेक्टली मैट्रिक के बाद आ रहे हैं BS में एडमिशन चाहते हैं, तो इसके लिए एडमिशन नहीं मिले। क्यों? कि उसके लिए जो प्री रैक हैं BS के लिए वो इंटरमीडिएट हैं,
अब वो पहले इंटरमीडिएट कंप्लीट कर ले, उसके बाद उसके लिए एडमिशन होगी। सेम इज़ द केस यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्स के लिए प्री रिक्विजिट हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं। अब अगर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो कि बेसिक हैं इसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए, अगर इसका ये क्लियर नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्स जो कि सेकंड सेमेस्टर में नहीं उठा सकता। इस कोर्स के लिए पहले उसको चाहिए कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल क्लियर कर ले, तभी जाके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्स उठा ले। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसी दूसरे कोर्स के लिए प्री रिक है तो वो कोर्स भी जो थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में वो भी नहीं उठा सकता जब तक उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लियर नहीं है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तभी क्लियर होगा जब उसका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पहले से क्लियर है। अगर एक कोर्स किसी दूसरे कोर्स के लिए प्री रिक हैं तो वो सेमेस्टर पहले सेमेस्टर में आएगा, जिसके लिए प्री रिक हैं वो उसके दूसरे सेमेस्टर में आएगा। कोर्स फाइल में क्या क्या चीज़ें होने चाहिए? डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्स या कोर्स सब्जेक्ट हो, कोर्स कोडिंग मैंने बता दिया, यही कोर्स कोड होता है जो अभी ये सेम CS102 CS101 ये कोर्स कोड है। डिस्क्रिप्शन में इसी कोर्स को इसकी लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन, उसके ऑब्जेक्टिव, इसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा वीकली टीचिंग स्केड्यूल क्या होगा कि पर वीक इन मींस कंटेंट्स, वीकली कंटेंट्स आप प्रोवाइड कर लें और ये भी इंक्लूडेड होगी कोर्स फाइल में। स्टूडेंट्स की अटेंडेंस रिकॉर्ड, डेट शीट ऑफ मिड सेमेस्टर एंड फाइनल सेमेस्टर, क्विज़ेस असाइनमेंट्स के लिए ग्रेडिंग पॉलिसी, मसलन टोटल 100 मार्क्स होते हैं, उसमें से नॉर्मली 30 मिड के लिए होते हैं और 50 फाइनल्स के लिए। 20 रह गए, 20 में से लेट सपोज 5 आप असाइनमेंट्स के लिए रखते हैं, 5 प्रेजेंटेशन के लिए, 5 क्विज़ेस के लिए और 5 क्लास पार्टिसिपेशन या वाइवा एट्सेट्रा। तो इसकी ग्रेडिंग पॉलिसी भी क्लियर होना चाहिए, वो भी मेंशन है कि मैंने पूरे 100 मार्क्स को किस तरह डिवीज़न किया हुआ है। कॉपी ऑफ टॉपिक्स फॉर ईच असाइनमेंट्स, आप जो असाइनमेंट दे रहे हैं उसके टॉपिक्स के कॉपी भी कि ये असाइनमेंट स्टूडेंट्स को मैंने दिए थे, और साथ साथ 3 असाइनमेंट जो स्टूडेंट सबमिट कर ले उसकी तरफ से, इसमें जिस स्टूडेंट्स ने उस असाइनमेंट में टॉप किए हैं वो जो एवरेज हैं और जो बिलो हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने असाइनमेंट दिए हैं 20 स्टूडेंट्स है टोटल और इसके 5 मार्क्स हैं, असाइनमेंट 1 है, तो असाइनमेंट 1 में 5 मार्क्स हैं, तो आपने क्या करना है कि जिस स्टूडेंट्स ने 5 में से 4 लिए तो ये टॉप है, और जिसमें से जिसने लेट्स सपोज 2.5 तो एवरेज, और जिसने 1 लिया है या 0 तो ये बिलो है। तो ये 3 स्टूडेंट्स के ये रिकॉर्ड भी सबमिट होना चाहिए। सेम इज़ द केस फॉर क्विज, मिड सेमेस्टर का रिज़ल्ट, फाइनल का रिज़ल्ट, या कोई टर्म पेपर्स आपने दिए हैं सेशनल जिसको हम कहते हैं वो भी। अच्छा, और उसके सेम जिस तरह असाइनमेंट्स में थे 3 आंसर बुक भी स्टूडेंट्स के, वो स्टूडेंट जो जिसने टॉप किया है, जो एवरेज में और जो बिलो हैं। ग्रेडिंग शीट ऑफ द कोर्स मींस कंप्लीट रिजल्ट्स डिटेलिंग स्टेटिस्टिकल डेटा कि इस बंदे के इतने मार्क्स और अब कितना ग्रेड्स लिया हुआ है। इसके अलावा टीचर ये भी कोर्स फाइल में सबमिट कर ले कि ड्यूरिंग द सेमेस्टर जो स्टूडेंट्स को क्लास रूम में सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा था, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम फेसिंग हुई है वो भी साथ इंक्लूड करना। मसलन कोर्स कंटेंट्स ठीक नहीं थे, मल्टीमीडियाज़ अवेलेबिलिटी नहीं है, लाइट्स की इश्यूज़ हैं, स्टूडेंट्स लेट्स आते रहते हैं, तो ये सारे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ है, वो भी कोर्स फाइल में रखना चाहिए। एवलुएशन, किसी भी जगह पे किसी की असेसमेंट्स के लिए, चेकिंग के लिए कि हमारा सिस्टम कैसे जा रही है, एवलुएशन बहुत ज़रूरी है। तो एवलुएशन यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम में चूँकि स्टूडेंट्स और टीचर इन्वॉल्व हैं तो दोनों की एवलुएशन कंपलसरी है, स्टूडेंट्स के एवलुएशन भी और टीचर्स की भी। स्टूडेंट्स के एवलुएशन नॉर्मली हम 2 तरीके से करते हैं, एक तो उसके अटेंडेंस और दूसरी उसकी एग्जामिनेशन से। अटेंडेंस में हम पहले देखते हैं कि वो इसके अटेंडेंस कितने % है। अगर जो रिक्वायर्ड रेंज है सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए, अगर वो अटेंडेंस पूरा नहीं हो रहा तो इसकी एवलुएशन यहाँ पे ख़त्म कर लो कि बस ये सेमेस्टर के लिए अलाउड ही नहीं है।
फिर अगर अलाउड है तो एग्जामिनेशन में हम इसको चेक करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, जिसमें क्विज़ेज़ हैं, असाइनमेंट्स हैं, मिड टर्म है, फाइनल टर्म है, वाइवा है, एट्सेट्रा। टीचर के एवल्यूशंस भी होने चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, टीचर एवल्यूशन रिपोर्ट। नॉर्मली क्यूसी वालों का काम है, क्यूसी वाले ये काम अरेंज कर लें। और आगे आ रहे हैं कि हम कौन कौन से प्रोसीजर मेथड्स फॉलो करेंगे जिससे टीचर की एवल्यूशन हो जाए। अटेंडेंस, किसी भी क्लास के लिए अटेंडेंस मैंडेटरी है, स्पेशली सेमेस्टर में। अगर एक स्टूडेंट्स जो हैं अटेंडेंस रिक्वायरमेंट जो 75% है, इसको रिक्वायर्ड जो रेंज है उसको सेटिस्फाइड नहीं करवा सका, तो अब वो एग्ज़ाम के लिए, फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम के लिए वो इनएलिजिबल है, अपीयर ही नहीं हो सकता। अच्छा, जब एलिजिबल हो गया, अपीयर ही नहीं हो सकता, वो क्या कर ले, वो इसी कोर्स को रिपीट्स कर लें नेक्स्ट जो रेगुलर स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसी सेमेस्टर में। सिंपल सा एग्जांपल है, लेट सपोज एक स्टूडेंट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग कोर्स जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में, वहाँ पे वो फेल हो गया बदकिस्मती से, या उसकी अटेंडेंस कम थी, वो अलाउड ही नहीं था एग्ज़ाम के लिए, तो कोर्स फेल हो गया। अब नेक्स्ट टाइम वो इसी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को किस तरह पास किया जाए, ये इस कोर्स में वो किस तरह ग्रेड ले, तो प्रोसीजर सिंपल है। एक प्रोसीजर ये है कि अगर अब वो सेकंड सेमेस्टर में आ गया, सेकंड सेमेस्टर में किसी दूसरी डिपार्टमेंट में विद इन द इंस्टीट्यूट या कॉलेज और यूनिवर्सिटी कोर्स ऑफ़र है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का, जिसके टाइटल और कोड सेम है, क्रेडिट आवर भी सेम है, स्टूडेंट्स की क्लासेस के दौरान कोई क्लेश भी नहीं आ रहा, तो बेशक वो वहाँ से उसी डिपार्टमेंट से वो कोर्स उठा ले। एक प्रोसीजर ये है, इसके लिए एक कंडीशन ये भी है कि स्टूडेंट्स के टोटल क्रेडिट आवर्स भी चेक किया जाए कि वो 20 से अबव तो नहीं हो रहा, अगर अबव हो रहे हैं तो फिर भी अलाउड ना कर ले। दूसरा प्रोसीजर ये है कि स्टूडेंट्स वेट कर ले नेक्स्ट ईयर के लिए, जब फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स आ जाएं, वहाँ पर ये कोर्स ऑफ़र हो जाए तो वहाँ वो इनके साथ ये कोर्स उठा लें। और इस कोर्स में ऐसा नहीं कि बस कोर्स में रजिस्टर्ड हो गया अब उसका डायरेक्टली एग्ज़ाम और फाइनल और मिड एग्ज़ाम होगा, नहीं, बल्कि वो इसी कोर्स के ठीक ठाक जिस तरह प्रीवियस ईयर में लिए थे रेगुलर क्लासेस लेंगे, उसके क्विज़ेस, असाइनमेंट्स, मिड टर्म और फाइनल टर्म, वही प्रोसीजर जो फ्रेश स्टूडेंट्स के साथ यूज़ होगा उसके ऊपर अप्लाई होगी, सेम इज़ द केस इसी स्टूडेंट्स के ऊपर भी अप्लाई होगी। एग्ज़ामिनेशन सेमेस्टर में इम्पॉर्टेंट है, वो हम कई तरह से लेते हैं, क्विज़ेस की फॉर्म में, मिड टर्म्स, फाइनल एग्ज़ामिनेशन, प्रेजेंटेशन 2 टाइप का, इंडिविजुअल भी और ग्रुप वाइज भी, ग्रुप डिस्कशन, क्लास पार्टिसिपेशन, प्रोजेक्ट्स, टर्म प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है एग्ज़ामिनेशन में। यही असेसमेंट के जो मार्क हैं वो टीचर पहले से डिटरमाइन कर लेगा, डिस्प्ले कर लेगा स्टूडेंट्स के लिए कि यही हमारा इसी कोर्स में हमारा यही प्रोसीजर होगा कि मिड के इतने वेटेज होंगे, फाइनल के इतने वेटेज, असाइनमेंट क्विज़ेस के इतने वेटेज, यही कंबाइंस करके हमने क्या बनाना है पूरा असेसमेंट, और इसकी 100 में से जितनी परसेंटेज आते हैं उसी परसेंटेज में आपकी मार्किंग होगी। एग्ज़ाम में एक ये रूल्स ये भी हैं कि सीटिंग प्लान प्रॉपर होना चाहिए। नॉर्मली एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 30 to 35 स्टूडेंट्स पर रूम में आना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी आंसर बुक्स हैं वो कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम के आर्डर से या एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर के आर्डर से इश्यूज़ होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द एग्ज़ाम्स, और ये 5 टाइम्स बिफोर इशू होना चाहिए। अच्छा, ये भी एग्ज़ाम रूल्स हैं कि अगर एक स्टूडेंट्स है एग्ज़ाम में, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक पेपर में आपका कंसर्न टीचर होगा, कोई और भी टीचर हो सकते हैं, तो स्टूडेंट से अलाउड नहीं है कि वो कोई क्वेश्चन पूछ ले या एक्सप्लेनेशन के लिए रिक्वेस्ट कर ले, या टीचर जो हैं वो उसके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर ले। कीप इन माइंड ये भी अलाउड नहीं है कि टीचर वहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर ले विदाउट कंसल्ट ऑफ कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम। जब पेपर्स कंप्लीट हो जाए, स्टूडेंट्स अपने आंसर बुक्स, जितने भी कंटिन्यूएशन शीट्स लिए हैं
या कोई और मटेरियल हैं जो कि रिलेवेंट टू पेपर हैं, तो सुपरवाइज़र स्टाफ को हैंड ओवर कर लें। आंसर बुक जो हैं वो बिफोर स्टार्टिंग द पेपर 5 मिनट्स पहले इश्यूज होना चाहिए, और ये ड्यूली साइन भी होगा, टेस्टेड भी होगा विद द स्टैम्प ऑफ कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इशू अटेंडेंस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिंटेड आउट फॉर्म में स्टूडेंट्स का अटेंडेंस मींस सिग्नेचर एग्ज़ाम के दौरान ये लेना चाहिए। अगर कोई एब्सेंट है तो ये सारा रिपोर्ट एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर्स को सबमिट्स होना चाहिए। ये भी नहीं कि स्टूडेंट्स पेपर स्टार्ट हैं 30 मिनट्स बाद एक स्टूडेंट्स आ रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो ये अलाउड नहीं है। और ये भी अलाउड नहीं है कि टाइम पूरा नहीं हुआ है, 50% टाइम अगर पूरा हुआ है तो जा सकता है, अदरवाइज़ कोई भी अलाउड नहीं है कि एग्ज़ाम हॉल को छोड़ सके। एवलुएशन क्राइटेरिया कुछ यूँ है। वेटेज क्विज़ेस के वेट्स हम रखते हैं 5 to 10% इन्हीं के दरमियान। मिड सेमेस्टर 20 to 25%, असेसमेंट असाइनमेंट्स प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकल 5 to 25%, सेशनल एग्ज़ाम है अगर तो 10 to 15% वेटेज है इसकी, फाइनल 35 to 40% वेटेज। सम यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में सेशनल नहीं लेते तो इसके मार्क्स इंक्लूड करते हैं। 30% का वेटेज मिड सेमेस्टर का होता है और 50 का फाइनल एग्ज़ाम के लिए। हाँ, अगर कोर्स हैं 4 क्रेडिट का तो फिर वहाँ पर थ्योरी एंड 1 क्रेडिट्स और प्रैक्टिकल, तो इसमें 75% पेपर थ्योरी का होगा और 25% जो वेटेज हैं वो लैब या प्रैक्टिकल वर्क के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल केमिस्ट्री का एक कोर्स है, 4 क्रेडिट हैं जिसके साथ लैब भी हैं, तो 75 मार्क्स का पेपर थ्योरेटिकल होगा और 25 मार्क्स का पेपर उसका लैब पेपर होगा। सेमेस्टर एग्ज़ाम में कोई सप्लीमेंट्री या स्पेशल एग्ज़ाम अरेंज नहीं होता। हाँ, एक सूरत में जब स्टूडेंट्स उसको रिपीट करवाना चाहते हैं समर सेमेस्टर की चांसेस है, लेकिन इसके लिए कंडीशन भी कुछ है यूनिवर्सिटी की तरफ से या कॉलेज अपनी कौंसल की तरफ से कि ऐसा भी नहीं कि एक स्टूडेंट्स है उसके लिए समर सेमेस्टर ऑफ़र किया जाए, ये भी नहीं अलाउड नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर सेटिंग, एग्ज़ाम के रूल्स में ये भी हैं कि क्वेश्चन पेपर किस तरह सेट किया जाए। जो भी क्वेश्चन पेपर होगा वो कंसर्न सब्जेक्ट टीचर सेट करा। ऐसा भी नहीं कि एक टीचर या एक इंस्ट्रक्टर कोर्स टीच कर रहा है और दूसरा पेपर जो है कोई और सेट कर ले, तो ये अलाउड नहीं है, खिलाफ हैं सेमेस्टर रूल्स के। अच्छा, तो क्वेश्चन पेपर इस तरह होना चाहिए जितना भी कोर्स कवर्ड किया गया है सिलेबस उसी के अंदर ही पेपर बनाना होगा। हाँ, एक सिचुएशन है कि अगर कंसर्न इंस्ट्रक्टर या टीचर अवेलेबल नहीं है, कोई इमरजेंसी है, कोई अहम इश्यूज आ चुके हैं, तो फिर चेयरमैन एचओडी या कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल्स किसी दूसरी टीचर को प्रॉपरली नॉमिनेट कर ले, उसके अपॉइंटमेंट कर ले, मींस उसके लिए लेटर इश्यूज़ कर ले विद इन द कॉलेज कि आप इसी कंसर्न सब्जेक्ट का पेपर बना लें। तो फाइनल और मैथ के लिए वेट कितना होगा कि कंटेंट से कितना पोर्शन मैथ के लिए है और कितना फाइनल के लिए। सो 25% जो है फाइनल एग्ज़ाम के लिए, 25% कोर्स मैथ से आपने लेना है और 75% कोर्स मैथ टू फाइनल जो पढ़ाया गया है पेपर वहाँ से होगी। यानी मैथ ख़त्म हो गया, फाइनल एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो फाइनल पेपर कहाँ से होगी? जो मैथ में आपने कोर्स पढ़ाया हुआ है या पेपर लिया हुआ है 25% वहाँ से होगा, और मैथ के बाद जो कोर्स फाइनल तक पढ़ाया गया है 75% वहाँ से होगा। स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, किस तरह क्वेश्चन पेपर होगी? रूल्स ये हैं कि फाइनल पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन होना चाहिए, जिसमें 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 4 डिस्क्रिप्टिव यानी लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं। और ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन जो है उसकी सेम इक्वल मार्क्स होना चाहिए। मसलन 50 मार्क्स का पेपर है तो ऑब्जेक्टिव के 10 मार्क्स,
फिर जो 4 क्वेश्चन और हो गए तो डिस्क्रिप्टिव, उसके लिए भी हर एक क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स, तो टोटल 50 मार्क्स हो जाएगी। अच्छा, सेमेस्टर में क्वेश्चन पेपर में कोई चॉइस नहीं होगा। मसलन आपने 8 क्वेश्चन दे दिए कि इसमें से 5 जो हैं वो सॉल्व कर ले, 3 चॉइस है, नहीं, ये चॉइस अलाउड नहीं है सेमेस्टर में। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन 1 जो है ऑब्जेक्टिव, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, डिफिनीशन ऑफ टेक्निकल टर्म्स भी हो सकते हैं, कोई ड्राइविंग स्केल ओरिएंटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, या कोई डायग्राम है उसको इंटरप्रेटेड, ये इंक्लूडेड हैं फाइनल सेमेस्टर्स के लिए। एक ये भी है कि क्वेश्चन पेपर हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, ये कंप्यूटर प्रिंटेड फॉर्म, प्रॉपर फॉर्मेट जिसमें मोनोग्राम भी हैं, नेम ऑफ इंस्ट्रक्टर, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, ये सारी चीज़ें, और नोट वगैरह भी कि क्वेश्चन 1 कंपल्सरी है और बाकी जो हैं वो इतने क्वेश्चन है, इक्वल मार्क्स वगैरह, जो और कोई नोट्स वगैरह के लेट सपोज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सेल फोन आर नॉट अलाउड एट्सेट्रा। इसके अलावा द कंसर्न इंस्ट्रक्टर शेल अपीयर 5 कापीज़ ऑफ द अवार्ड, जब रिज़ल्ट आ जाए अवार्ड लिस्ट कंप्लीट कर लें तो 5 कापीज़ होना चाहिए, एक कापी उसके लिए अपने रिकॉर्ड्स के लिए, और 4 कापी जो हैं चेयरमैन या एचओडी जो हैं उसके साथ सबमिट करना है। फर्दर एचओडी ने उसका कोर्स फाइल बनाना है जो कि कोऑर्डिनेटर्स या प्रिंसिपल वगैरह के लिए साथ भी शेयर होगी। एक कंडीशन, फाइनल रिज़ल्ट जो हैं वो प्रिपेयर होगी विद इन 10 डेज़ विद ग्रेड कंप्लीट रिज़ल्ट्स, मीन्स स्टूडेंट्स हैं उसके ए ग्रेड आ गया, दूसरा स्टूडेंट है उसका बी ग्रेड आ गया, विद इन 10 डेज़, एंड विल बी अनाउंस बाय द कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम और DAI और यूनिवर्सिटी। चूँकि कॉलेज हैं जो कि एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी के साथ हैं तो फाइनल रिज़ल्ट वो अनाउंस करते हैं, तो 10 डेज़ के अंदर फैकल्टी ने रिज़ल्ट सबमिट करवाना है, फिर इसके बाद उसकी अनाउंसमेंट होगी। ग्रेडिंग पॉलिसी क्या होगी? एक स्टूडेंट हैं, एक सब्जेक्ट हैं जिसके 100 मार्क्स हैं, अब 100 में से स्टूडेंट्स ने ले लिया 85 या 85 और अबव मींस 100 तक, तो उसके ग्रेड पॉइंट क्या है 4, यानी GPA उसका क्या हो गया 4 हो गया, और उसका ग्रेड क्या बनता है A। डिस्क्रिप्शन में हम इसको क्या कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है। अगर एक स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट मार्क्स हैं टोटल 100 में से 85 और अबव मीन्स 85, 86, 90, 95 एंड सो ऑन, 85 से लेकर 100 तक जितनी भी हैं उसका सेम ग्रेड पॉइंट 4। अब एक स्टूडेंट्स के 85 हैं और दूसरे स्टूडेंट्स के 96 हैं, तो दोनों का सेम ग्रेड है 4 GPA, और दोनों का ग्रेड पॉइंट 4 है, और दोनों का ग्रेड भी सेम होगा A, और दोनों आउटस्टैंडिंग है। अगर 85 से बिलो है 84 से लेकर 80 तक, तो फिर ग्रेड पॉइंट चेंज होगी 3.70, और ग्रेड क्या होगा A नेगेटिव, और ये क्या होगा एक्सीलेंट होगा। फिर सेम इज़ द केस 75 to 79 3.30, B प्लस वेरी गुड एट्सेट्रा। अब अगर ग्रेड आ गया 50 बिलो, तो फिर हम कहते हैं कि ये फेल कंसीडर होता है, और इसको ग्रेड क्या होगा F, और उसके ग्रेड पॉइंट 0.0। यहाँ पर जो पासिंग मार्क्स हैं वो 1 ग्रेड हैं, यानी 52 54 ये पासिंग मार्क्स हैं, तो वहाँ पर इसके ग्रेड क्या है D हैं, जो कि बस बाउंड्री पे पास हो रहा है। डिग्री रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या चाहिए कि आपके पास ग्रेड पॉइंट 2 होना चाहिए, यानी C ग्रेड अगर आपके हैं तो आपको डिग्री मिल सकती है, अदरवाइज़ आपकी डिग्री, आप कोई भी डिग्री नहीं ले सकती BS प्रोग्राम। डिग्री कंप्लीशन रिक्वायरमेंट, BS प्रोग्राम में एटलीस्ट 130 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट्स की हैं। एक स्टूडेंट्स के मिनिमम क्वालिफाइंग CGPA, एक GPA होता है जो एक सब्जेक्ट का GPA होता है, एक CGPA कम्युलेटिव GPA जिसका हम कहते हैं,
पूरे सेमेस्टर के कंबाइंड जीपीए जिसका हम कहते हैं। अगर मिनिमम सी जीपीए 130 क्रेडिट आवर्स में उसने लिए हैं 2, तो इसके डिग्री कंप्लीशन रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं। और मैक्सिमम अगर एक स्टूडेंट्स हैं जिसके पेपर्स रिपीट्स होते रहते हैं तो कितने तक जा सकते हैं, 6 ईयर यानी 12 सेमेस्टर तक वो अलाउड हैं कि अपने डिग्री कंप्लीट्स कर ले या अपने सी जीपीए को 2 तक लेकर आए। आफ्टर 12 सेमेस्टर उसकी डिग्री ड्यूरेशन ख़त्म हो गई। हाँ, कोई स्पेशल अप्रूवल वगैरह अगर वाइस चांसलर दे दे तो अलाउड है। एक और कंडीशन, एक स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि मेरे मार्क्स कम आ गए, आई वांट टू इम्प्रूव माय पेपर, माय ग्रेस पॉइंट, तो वो क्या कर लें? तो क्या कुछ रूल्स हैं कहाँ तक वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करवा सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर में उसने जीपीए ले लिया 2.0, ओके, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5। फर्स्ट सेमेस्टर है स्टूडेंट्स का, उसने जीपीए ले लिया जो है जीपीए वो 1.5 से लेकर 2.0 के दरमियान है, यानी 2 पॉइंट है नहीं, इससे बिलो है। शी विल बी कंसिडर ऑन प्रोबेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं कि प्रोबेशन 1 है। लेसन अगेन प्लीज़, एक स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड में है, इसका पूरे सेमेस्टर का सी जीपीए जो है वो 2 से बिलो है और 1.5 या 1.5 से अबव है। अगर 1.5 से बिलो है तो फिर तो ये फेल कंसीडर होता है। अच्छा, अब यही स्टूडेंट जो है इसको हम क्या कहते हैं कि प्रोबेशन 1 में है। नेक्स्ट सेमेस्टर आ गया, यही स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया दूसरे सेमेस्टर में भी, और वहाँ पर भी उसकी सी जीपीए 2.0 से बिलो है, लेकिन अभी सेकेंड सेमेस्टर में कंडीशन टफ है, 1.7 तक हैं। अगर ऐसे बिलो आ गए तो फिर तो वो अलाउड ही नहीं, 1.7 तक हैं, तो ये प्रोबेशन 2 कंसीडर होता है। प्रोबेशन 1 के लिए कंडीशन किया है कि 2 से बिलो हैं और 1.5 और अबव हैं। प्रोबेशन 2 के लिए कंडीशन है कि 1.7 और से अबव है लेकिन 2.0 से बिलो है, तो ये 2 प्रोबेशन में आ गया। अब सेकंड प्रोबेशन में आने के बाद इसको क्या कहते हैं, सीज कहते हैं। सीज स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में कंडीशन ये है, जब भी वो सेमेस्टर में रजिस्टर होते हैं ओनली 3 कोर्सेज अलाउड हैं कि वो रजिस्टर कर ले, इससे ज़्यादा कोर्सेज नहीं, उसके लिए अलाउड ही नहीं। याद दो कि उसके कोर्सेज रहती भी हैं लेकिन अलाउड नहीं है। अब अगर थर्ड सेमेस्टर में अगेन उसकी सी जीपीए जो है 2.0 से कम हो गया कंसेक्यूटिव 3 सेमेस्टर में, यहाँ पे बात कंसेक्यूटिव भी की है। फर्स्ट सेमेस्टर में 2 से बिलो है 1.5 तक है, सेकंड में 2 से बिलो है 1.7 तक। अब कंसेक्यूटिव हैं तो थर्ड में जो है सीज में आ गया, सीज में जस्ट वो 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अगर थर्ड में भी उसकी सी जीपीए 2 से बिलो हो गया तो ये स्टूडेंट जो है ड्रॉप हो गया ऑटोमेटिकली बाय रूल्स, उसको दोबारा एडमिशन ना दे इसी कॉलेज में। बेशक वो किसी दूसरी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते, लेकिन इसी कॉलेज में वो रीएडमिट नहीं होगा। प्रोबेशन 1 क्या होता है कि अगर एक सेमेस्टर में एक स्टूडेंट के सी जीपीए 2 से बिलो हो गया और 1.5 तक आ गया, 1.5 से लेकर 2.0 से, अगेन दूसरे सेमेस्टर में भी सेम उसकी रिज़ल्ट 2.0 से बिलो हो गया। अब 2 सेमेस्टर कंसेक्यूटिव सेमेस्टर में, अब ये भी पॉसिबल है, एक स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर में इसका सी जीपीए 2 से बिलो है लेकिन सेकंड में उसने 2 से अबव कर लिया, अब ये प्रोबेशन से निकल गया। थर्ड में दोबारा बिलो हो गया, अब अगेन उसके लिए फर्स्ट प्रोबेशन है। लेकिन अगर फर्स्ट में भी प्रोबेशन 2 से बिलो है, सेकंड में भी कंसेक्यूटिव सेमेस्टर में अगेन बिलो हो गया, अब ये प्रोबेशन 2 में हो गया। इसको हम अगर 2 कंसेक्यूटिव प्रोबेशन आ गए इन अदर वर्ड्स तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, सीज स्टूडेंट कहते हैं। तो सीज स्टूडेंट्स के लिए रूल्स ये हैं कि वो नेक्स्ट जो सेमेस्टर आने वाला है थर्ड, उसमें ओनली 3 कोर्सेज उठा सकते हैं। वो 4 क्रेडिट का भी हो सकता है और 3 क्रेडिट का भी हो सकते हैं। अब अगर
कंसेक्यूटिव थर्ड सेमेस्टर में भी उसकी CGPA 2 से बिलो हो गया तो रूल्स के मुताबिक ये ड्रॉप आउट हो गया, इसको री एडमिशन नहीं देना चाहिए सेम कॉलेज में, किसी और कॉलेज यूनिवर्सिटी में बेशक वो एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स को रिपीट करवाना चाहते हैं या इम्प्रूवमेंट्स करवाना चाहते हैं, if a students get F grade तो यानी below 50 she will be required to repeat the course has been offered, तो वो ये कोर्स जब ऑफर हो जाए तो रिपीट्स कर ले इस सेमेस्टर में या दूसरे में, ये कंपल्सरी है कि वो रिपीट्स कर ले क्योंकि ये फेल है। एक स्टूडेंट हैं जिसका F ग्रेड नहीं है, मार्क्स हैं 50 से अबव भी हैं, C ग्रेड लिया है, C ग्रेड नॉर्मली 61 to 64 ये C ग्रेड है, मीन्स 64 तक अगर उसके मार्क्स हैं, अगर 64 से अबव 63 से अबव हो रहा है तो फिर वो, या 64 से अबव हो रहा है तो फिर वो सब्जेक्ट रिपीट नहीं करवा सकता। अगर 64 से बिलो हैं तो वो सब्जेक्ट रिपीट कर सकते हैं। सिंपली एक स्टूडेंट है इंग्लिश की पेपर में 100 में से उसने ले लिया 50, ये पास तो हैं लेकिन वो स्टूडेंट चाहते हैं कि 100 में से ले लिया उसने 49, तो ये क्लियर कट फेल हैं, दोबारा जब ये सब्जेक्ट ऑफर हो जाए तो उसमें रजिस्ट्रेशन कर ले। एक स्टूडेंट है जिसमें 100 में से 50 मार्क्स ले लिए, अब ये क्या है, ये पास हैं लेकिन अगर वो चाहें तो वो ये सब्जेक्ट को रिपीट करवा सकते हैं मार्क्स के लिए। एक दूसरा स्टूडेंट है जिसमें सेम कोर्स में से 100 में से ले लिए 65, अब वो चाहते हैं मैं इसको इम्प्रूव कर लो 70 तक, लेकिन अब ये जो स्टूडेंट है ये अलाउड नहीं है कि वो अपने इस कोर्स को इम्प्रूव कर ले। क्यों? क्योंकि इसका ग्रेड जो है वो सी से अबव होता जा रहा है, तो अब ये अलाउड नहीं है। सिंपली मार्क्स में अगर 100 में से कोई स्टूडेंट 64 से अबव मार्क्स लेते हैं तो वो कोर्स रिपीट नहीं करवा सकता। पूरे BS में अगर एक स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि मैं कुछ कोर्सेज जिसको रिपीट करवाना चाहता हूँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 18 क्रेडिट आवर इम्प्रूवमेंट के लिए या ग्रेड इम्प्रूवमेंट्स के लिए रिपीट करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। हाँ, अगर एक स्टूडेंट है जिसके कोर्स में मार्क्स लेट सपोज 60 थे, अब उसी ने इम्प्रूव कर लिया 60 की बजाय आगे 70, अब ट्रांसक्रिप्ट में क्या होगा कि उसके प्रीवियस ग्रेड भी होगा जो कि उसी वक्त लिया था यानी 50, और इसके अलावा जब इंक्रीज़ हो गया तो वो इंक्रीज़ को जो ग्रेड हैं पॉइंट्स है वो भी मेंशन होना चाहिए ट्रांसक्रिप्ट में। लेकिन जो CGPA कैलकुलेट होगी उसमें जो उसका इंक्रीज़ पॉइंट्स है ग्रेड हैं वही कैलकुलेट होगी, वही यूज़ होगी। एक स्टूडेंट है जो कि सेमेस्टर फ्रीज करवाना चाहते हैं। फ्रीजिंग क्या होता है कि सेमेस्टर को स्टॉप कर ले, मींस कि स्टूडेंट ने फ्रीज कर लिया, वो दोबारा इसको रिज्यूम स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो वो सेम स्टेट से, मसलन स्टूडेंट्स था जिसने सेकंड सेमेस्टर में एप्लीकेशन दे दिया कि मैं सेमेस्टर को फ्रीज करवाना चाहता हूँ, अब 1 साल बाद आ गया तो वो सेकंड सेमेस्टर ही से स्टार्ट लेगा, वहाँ से वो रिज्यूम कर लेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर कोई स्टूडेंट्स आए कि मैं फ्रीज करवाना चाहता हूँ तो ये अलाउड नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी फ्रीजिंग नहीं हो सकता। हाँ, अगर एक स्टूडेंट्स है जिसने कोर्स फ्रीज कर लिया, कितने टाइम तक फ्रीज कर सकते हैं? जितने ड्यूरेशन में डिग्री कंप्लीट होते हैं, जो कि ड्यूरेशन लास्ट मैक्सिमम ड्यूरेशन किया है 12 सेमेस्टर हैं यानी 6 ईयर। अगर वो 2 ईयर के लिए फ्रीज करवाते हैं, बाकी इसके जो सेमेस्टर हैं वो इसी 12 सेमेस्टर में कंप्लीट नहीं होती तो वो डिग्री के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट किसी भी कोर्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है, सेमेस्टर में ऑफ़र हैं, स्टूडेंट भी उसी सेमेस्टर में, मसलन 5 कोर्सेज ऑफ़र हो चुके हैं, स्टूडेंट भी सेकंड सेमेस्टर में, स्टूडेंट भी सेकंड सेमेस्टर का है,
और एक कोर्स के लिए उसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया हुआ है तो वो रेगुलर स्टूडेंट नहीं होगा, या पूरे सेमेस्टर के लिए उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो वो क्या होगा, कॉलेज इसी पीरियड के दौरान वो कॉलेज का रेगुलर स्टूडेंट नहीं है। फ्रीजिंग की ड्यूरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेमेस्टर को फ्रीज़ करवा सकते हैं 1 साल तक के लिए। इसके अलावा 20 स्टूडेंट्स फ्रीज़ करवा सकते हैं 2 सेमेस्टर से ज़्यादा भी, अगर कोई वैलिड रीज़न हो, कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो जिसके अप्रूवल प्रिंसिपल रिकमेंडेशन ये ऑफ द HOD अगर आ जाए तो फिर वो ले सकते हैं। लेकिन अगेन ड्यूरेशन, मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है सेमेस्टर का वो भी मद्देनज़र रखना चाहिए। एक स्टूडेंट हैं जो कि सब्जेक्ट में उसने रजिस्टर भी किया है, अब वो विड्रॉ करवाना चाहते हैं या ड्रॉप्स करवाना चाहते हैं या वो सब्जेक्ट चेंज करवाना, कोर्स को चेंज करवाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलीवेंट डीन रिस्पेक्टिव हेड ऑफ डिपार्टमेंट या प्रिंसिपल 7 दिन के अंदर अंदर सेमेस्टर जब स्टार्ट हो जाए किसी कोर्स को चेंज करवा सकते हैं। मसलन उसने इंग्लिश लिया हुआ है, विद इन अ वीक वो चाहते हैं कि मैं इंग्लिश इस बार नहीं उठाना चाहता, कोई और सब्जेक्ट उसकी जगह, तो वो करवा सकते हैं चेंज। इसके अलावा विद परमिशन आप HOD स्टूडेंट्स अगर एक कोर्स ड्रॉप करवाना चाहते हैं और सेमेस्टर के 4 वीक्स हो चुके हैं तो वो करवा सकते हैं विद इन 4 वीक्स, इससे ज़्यादा फिर वो अलाउड नहीं है। एक स्टूडेंट है अगर 15 वीक्स हो चुके हैं, एग्ज़ाम आने वाला है, वो चाहता है कि मैं अभी विड्रॉ करवाना चाहता हूँ, तो विद द परमिशन ऑफ रिस्पेक्टिव HOD और प्रिंसिपल तो वो करवा सकता है, अगर वो परमिशन ना दे तो नहीं करवा सकता। जो विड्रॉ कोर्सेज हैं ट्रांसक्रिप्ट में उसको W ग्रेड से हम रिप्रेजेंट्स करते हैं। इसका मतलब कि ये कोर्स फेल नहीं है, विड्रॉ हो चुका है और इसका कोई भी ग्रेड नहीं होगा और CGPA में इसकी कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी। एक स्टूडेंट्स हैं जो कि कोर्स उसने रजिस्टर्ड किए हुए हैं, उसके बाद विड्रॉ के लिए या चेंज के लिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिया हुआ है और उसी सेमेस्टर में उसकी अटेंडेंस जो है 45% तक आ गया, इससे बिलो है, तो वो एग्ज़ाम के लिए अलाउड नहीं है। फिर एक स्टूडेंट है जो कि मिसकंडक्ट या वायलेशन डिसिप्लिन में इन्वॉल्व हैं, तो वो भी एग्ज़ाम के लिए अलाउड नहीं होगा। टीचर की इवैल्यूएशन किस तरह किया जाना चाहिए, ये भी एक मैंडेटरी है कि हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन हर एक कोर्स इंस्ट्रक्टर को एवलवेट्स कर ले। किस तरह एवलवेट्स कर ले, कोई प्रोफार्मा जो QC वाले नॉर्मली बनाते हैं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड्स कर ले, और नॉर्मली ही प्रोफार्मा ऑब्जेक्टिव फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्वेश्चन होता है कि इसके लिए आप ऑप्शन दे दे के एक्सीलेंट है, गुड है, मसलन कम्युनिकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्टर एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज, नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अब स्टूडेंट्स लेट सपोज 20 स्टूडेंट्स है, उसमें से 15 ने नॉन सेटिस्फैक्ट्री कर दिया, तो इसका मतलब कि इसी टीचर का कम्युनिकेशन जो है वो वीक है। या लेट सपोज दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या टीचर वेल प्रिपेयर्ड हो के क्लास के लिए आता है, तो इसके लिए ऑप्शन एक्सीलेंट प्रिपरेशन करवा के आता है, वेरी गुड, गुड, एवरेज और नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो अगर नॉट सेटिस्फैक्ट्री है तो इसका मतलब कि टीचर कोर्स के लिए प्रिपरेशन करके नहीं आता। बेहतर तो यही होगा कि ये एवैल्यूएशन ऑनलाइन हो जाए, कोई ग्रुप्स बना ले, कोई गूगल ड्राइव पे लॉन्च कर ले, या कोई सिस्टम पहले से है तो वहाँ पर ऑनलाइन भी हो सकते हैं। अगर ऑनलाइन नहीं है तो पॉसिबल है कि मैनुअली पेपर्स फॉर्म में स्टूडेंट्स को दे दे और सबमिट कर ले। और ये सेमेस्टर के लास्ट वीक में होना चाहिए, यानी फाइनल के एग्ज़ाम से पहले। और ये क्लास में अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो
उसी वक्त लेना होगा जब इंस्ट्रक्टर या टीचर उसी क्लास में ना हो, यानी उसकी एब्सेंटी में आप जाके क्लास में वहाँ से ये प्रोफार्मा फिल करवा सकते हैं। यही प्रोफार्मा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा, और जब रिज़ल्ट आ जाए उसकी एवरेज मालूम करके कि कितने वेरिएशन है स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट्स में, तो फिर ये उसकी इम्प्रूवमेंट्स के आपके परफॉर्मेंस एवेलुएशन जो परसेंटेज आता है, मसलन 80% है एक स्टूडेंट्स का, तो टीचर का, तो टीचर के साथ शेयर भी करना चाहिए। कीप इन माइंड, जब हर एक इंस्ट्रक्टर का अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगा, वो किसी दूसरे इंस्ट्रक्टर के साथ शेयर नहीं होना चाहिए। Evaluation done by the students will be kept strictly anonymous. The student will not be required to indicate name. ये भी नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट्स का नाम, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन वगैरह या कोई इस तरह के सिंबल्स या आइडेंटिफिकेशन जिससे पता चले कि ये फ़लाँ स्टूडेंट्स ने ये रिज़ल्ट सबमिट किया है, ये नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स जो हैं वो उसका कोई भी बैकग्राउंड में उसका पता नहीं चलना चाहिए कि कौन से स्टूडेंट थे जिसने ये प्रोफार्मा या रिपोर्ट सबमिट्स किए। University College administration will be responsible for making this process transparent and shall not be made public. Thank you so much. Thanks for watching. Please reach out with question and comments. We look forward to hearing from you. Inshallah, in next lecture, we will discuss different committees relevant to semester system and their role and their responsibilities. If you have any question, then email is also mentioned in the slides, then mail me, and I am waiting for your feedback. Thank you so much.